Hello guys, ये वीडियो में let's try to solve as many practice problems as possible. Let's start with the first practice problem. There is an oil producer which will sell oil in the near future. As soon as you start reading the question, the first thing that you need to ask yourself is he going to be selling in the future or buying in the future? इस केस में he is going to be selling in the future. Whenever he is going to be selling in the future, he will take the short futures position. Similarly, whenever he is going to be buying in the future, he will take the long futures position. इस केस में हम लोग को मालूम है he is going to be selling in the future. It's very clear. That is why हमको दिमाग में रखना है कि he is going to be taking the short futures position. अब आगे रीड करते हैं. Today's spot price of oil is $50 per barrel and crude oil futures for March 15th is trading at $49 per barrel. तो टुडे का स्पॉट प्राइस इज $50 पर बैरल. इसके लिए S1 लिख सकते हैं $50 and crude oil futures for March 15th is trading at $49 per barrel. तो F1 लिख सकते हैं $49. On March 15th, the future is expiring and the price turns out to be $45 per barrel. तो on March 15th, the future is expiring. Whenever the future is expiring, there is a convergence of futures price and spot price. तो अगर आपको दिख रहा है कि futures is expiring, तो उस टाइम पे S2 and F2 both will be the same because there is a convergence of futures price to spot price. इसके लिए इस केस में हम लोग S2 and F2 दोनों को $45 लिखते हैं क्योंकि there is a convergence of futures price to spot price. अब हमें क्या करना है? We know कि he is going to be selling in the future. If he is going to be selling in the future, he will take the short futures position. अब short futures position जब भी लेते हैं तो हम लिखते हैं short at F1, मतलब he takes the short position at F1 which is short at $49. अब whenever you want to close the futures position, you take the opposite position and the opposite position is taken at F2. तो आपने लिया था short position at F1. short position क्यों लिया था? क्योंकि there is a short hedge. तो short at F1 का मतलब है short at 49 and you have to take the opposite position at F2 मतलब long at 45. अब इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करें? शॉर्ट एट 49 जब भी आप रीड करो तो यू कैन रीड इट एट यू अग्री टू सेल एट $49 एंड लॉन्ग एट 45 को आप रीड कर सकते हैं द प्राइस टर्न्ड आउट टू बी $45. तो यू अग्री टू सेल एट $49, प्राइस टर्न्ड आउट टू बी $45. तो इस केस में प्रॉफिट क्या होगा? $4 पर बैरल का प्रॉफिट होगा. क्यों? क्योंकि यू आर सेलिंग एट 49, ऐसी चीज जिसका मार्केट में सेलिंग प्राइस चल रहा है 45. तो इस केस में हो गया ना $4 का प्रॉफिट, $4 पर बैरल का प्रॉफिट हो गया फ्रॉम द फ्यूचर्स पोजीशन. अब स्पॉट मार्केट में बात करते हैं. इन द स्पॉट मार्केट यू हैव टू डू व्हाट यू वर गोइंग टू डू. तो यू हैव अग्रीड टू सेल इन द फ्यूचर, तो यू हैव टू सेल इट इन द स्पॉट मार्केट. अब सेल करेंगे इन द स्पॉट मार्केट तो यू विल गेट $45 पर बैरल. तो टोटल मनी दैट यू गॉट वाज हाउ मच? You got $45 in the spot market as well as you got the $4 per barrel in the futures position. तो $4 आया from the futures position and $45 आया from the spot market. तो net आपको जो आया वो है 45 plus 4 which is $49 per barrel. अभी इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं. सेकंड पार्ट में प्राइस turned out to be $55 per barrel on expiry. Because it's expiry we know that there will be a convergence of futures price to spot price. तो इस केस में S2 and F2 both will be $55. अब मैंने बताया था he is selling in the future. Selling in the future मतलब short futures. Short futures मतलब short at F1. तो आप लिख दो short at 49. Now you have to take the opposite position at F2. तो you will write long at 55. अब इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो आप अगेन यू रीड इट लाइक दिस. शॉर्ट एट 49 को आप रीड करो यू अग्री टू सेल एट 49. लॉन्ग एट 55 को आप रीड करो द प्राइस टर्न्ड आउट टू बी 55. तो यू आर सेलिंग एट 49 and the price turned out to be 55. So if anyone else wants to sell, they will sell at 55, but you have to sell at 49. इसके लिए इस केस में आपका $6 पर बैरल का लॉस हो गया. तो आपके फ्यूचर्स पोजीशन में देयर इज अ लॉस ऑफ $6 पर बैरल. अब स्पॉट मार्केट में आप क्या करेंगे? स्पॉट मार्केट में आप वही करेंगे जो आपको करना था, विच इज सेल इन द फ्यूचर. तो आप फ्यूचर आ गया, यू सेल इट इन द स्पॉट मार्केट. द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू गेट इन द स्पॉट मार्केट इज S2 विच इज $55 पर बैरल. तो आपको $55 पर बैरल मिले बट फ्यूचर्स अकाउंट में $6 का लॉस हो गया था तो $6 चले गए. तो नेट आपको जो मिला वो है $55 पर बैरल फ्रॉम द स्पॉट अकाउंट, बट फ्यूचर्स अकाउंट से $6 चले गए थे. तो 55 - 6, तो इस केस में इफेक्टिव प्राइस हो जाएगा $49 पर बैरल.
अब सेकंड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं. सेकंड प्रॉब्लम है, टुडे इज January 15th and there is a copper fabricator which will require 100,000 pounds of copper. Ab again ask yourself this, he will require copper, that means he is going to be buying copper in the future. If he is going to be buying copper in the future, you take the long futures position. So whenever you are selling in the future, you take the short futures position. In this case, he is buying in the future, that is why he will take the long futures position. The spot price is 3.40 per pound and futures price for Jan is 3.20 per pound. तो आप S1 लिख सकते हैं 3.40 and F1 लिख सकते हैं 3.20. On January 25th, the price turned out to be 3.045 per pound at expiry. The price turned out to be 3.05 per pound. तो there's a convergence of futures price to spot price. मैं बहुत बार बोल चुका हूँ. तो at expiry ही होता है convergence of futures price to spot price. इस केस में expiry है, इसके लिए S2 and F2 both will be 3.05 in this case. अब he is going to be buying in the future. मैंने बोला है whenever you are buying in the future, take the long futures position. तो इस केस में what position will you take long futures? तो long at F1. तो आप लिख दो long at 3.20 and you have to take the opposite position at F2. इसके लिए आप लिख सकते हैं short at F2 which is short at 3.05. अब इस केस में profit and loss कैसे calculate करें? तो इस केस में you read it as long at 3.20 meaning you agree to buy at 3.20 and price in the market turned out to be 3.05. You agree to buy at 3.20, price turned out to be 3.05. So you are buying something at a price which is more expensive than others are buying it at. Others can buy it at 3.05 but you are buying it at 3.20. इसके लिए इस केस में आपका लॉस हो गया of 0.15 per pound. अब इन स्पॉट यू विल डू व्हाट यू वर सपोज टू डू विच इज बाय इन द फ्यूचर. तो फ्यूचर में स्पॉट प्राइस पे आप बाय करेंगे ही. तो यू बाय इट एट 3.05 per pound विच इज S2. S2 is 3.05 per pound. You will buy it at S2. तो द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर पेइंग इज 3.05 जो आपने स्पॉट मार्केट में बाय करने के लिए पे किया, प्लस आपके फ्यूचर्स अकाउंट में लॉस हो गया था. तो फ्यूचर्स अकाउंट में लॉस था 0.15 per pound जो आपके पॉकेट से गया. तो इसके लिए 3.05 plus 0.15 will be the effective price that you pay, which is 3.20 per pound. इसके second part में 3.25 per pound at expiry. The price turned out to be 3.25 per pound at expiry. Expiry है तो convergence of futures to spot S2 and F2 both will be 3.25. Long futures position है, इसके लिए long at F1 which is long at 3.20. Opposite position लेनी होती है F2 पे, तो short at F2 which is 3.25. प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हाउ विल यू रीड इट? लॉन्ग एट 3.20 का मतलब होता है यू अग्री टू बाय एट 3.20. अब इसको सेकेंड लाइन को आप रीड कर सकते हैं, प्राइस इन द मार्केट टर्न्ड आउट टू बी 3.25. तो यू आर बाइंग इट एट 3.20 बट मार्केट प्राइस इज 3.25. सो इफ एनीवन एल्स वांटेड टू बाय दे विल बाय इट एट 3.25. तो इस केस में आपका 0.05 पर पाउंड का प्रॉफिट हो गया. अब 0.05 पर पाउंड का प्रॉफिट हुआ है फ्यूचर्स अकाउंट में. स्पॉट मार्केट में आप जाके बाय करेंगे स्पॉट मार्केट में बाय करेंगे बिकॉज यू आर सपोज टू बाय इन द फ्यूचर. तो स्पॉट मार्केट में यू विल बाय इट एट S2 विच इज 3.25 पर पाउंड. तो द नेट मनी दैट यू पेड इज 3.25 दैट यू पेड इन द स्पॉट मार्केट. बट आपके फ्यूचर्स अकाउंट में 0.05 पर पाउंड भी तो आए थे. तो नेट मनी दैट यू पेड वॉज 3.25 माइनस 0.05. क्यों माइनस? क्योंकि वो आपके अकाउंट में आए थे. 3.25 आपने पे किए और आपके अकाउंट में 0.05 आ गए. तो नेट आपका जो पैसा गया दैट वाज 3.25 माइनस 0.05 विच इज 3.20 पर पाउंड. अब आ जाते हैं थर्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे. थर्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम में अ यूएस कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव 50 मिलियन येन समवेयर इन मार्च. अब यूएस की कंपनी है, यूएस की कंपनी विल बी ऑपरेटिंग इन यूएस डॉलर्स बट दे आर गोइंग टू बी रिसीविंग 50 मिलियन येन. वो लोग 50 मिलियन येन का क्या करेंगे इफ दे आर ऑपरेटिंग इन यूएस डॉलर्स? तो दे विल सेल द 50 मिलियन येन. If someone is selling in the future, they will take the short futures position or the short hedge. तो इस केस में the US company will take the short hedge on yen. They will take the short futures position on yen. ये याद रखना है. फिर one contract of yen is 12.5 million yen. Today the spot and futures price is 1.075 and 1.08 respectively.
तो S1 हो गया 1.075 एंड F1 हो गया 1.08. The company intends to close this contract in March when spot price is 1.02, तो S2 हो गया 1.02 and futures price is 1.025, तो F2 हो गया 1.025. अब the one thing that you can notice here is S2 and F2 is not the same. तो हम ये कह सकते हैं क्या कि S2 and F2 सेम नहीं है, तो दे आर क्लोजिंग द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बिफोर एक्सपायरी. अगर एक्सपायरी पे क्लोज कर रहे होते तो S2 and F2 हैज टू बी द सेम because there's a convergence of futures price to spot price. इस केस में they are closing the futures position before expiry. इसके लिए S2 and F2 different है. अब आगे determine profit or loss and effective price. तो अब we know कि they are going to be selling yen in the future and they have taken the short futures position. तो हम हमेशा बात करते हैं short at F1. तो इस केस में they will short yen at 1.08. अब दूसरी चीज़ है if they are shorting at F1 तो they have to take the opposite position at F2 to close the futures contract. तो long yen at 1.025 because long yen at F2 पे they have to take the opposite futures position. तो short yen at 1.08, long yen at 1.025. अब ये जो सारे रेट्स दिए हुए हैं आप नोटिस कर सकते हैं all prices are in cents per yen. यानी कि 1 yen equal to how many cents. All the prices are 1 yen equal to how many cents. तो अब हम रीड कैसे करेंगे? They agree to sell yen at 1.08. यानी कि if they give the opposite party 1 yen, they will receive 1.08 cents. तो that is they are selling 1 yen and they will receive 1.08 cents. तो फर्स्ट लाइन का मतलब समझ गए short yen at 1.08 का. अब long yen at 1.025. इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं द प्राइस टर्न्ड आउट टू बी 1.025. यानी कि anyone else wanted to sell yen, they would receive only 1.025 cents per yen. US company is going to be receiving 1.08 cents per yen. Anyone else wants to sell, they will only receive 1.025 cents per yen. तो इसके लिए यूएस कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? यूएस कंपनी को 0.055 सेंट्स पर येन का प्रॉफिट हो गया. अब फ्यूचर में जाके दे हैव टू डू व्हाट दे आर सपोज टू डू. दैट मीन्स दे हैव टू सेल येन इन द स्पॉट मार्केट. तो स्पॉट मार्केट में द यूएस कंपनी विल सेल येन एंड द प्राइस दैट दे विल रिसीव इज द स्पॉट प्राइस S2. तो उनको मिलेगा रेट 1.02 सेंट्स पर येन का. तो बाय सेलिंग 1 येन नेट नेट उनको पैसे कितने आ रहे हैं? उनको 1.02 सेंट्स आ रहे हैं बिकॉज दे आर सेलिंग इन द स्पॉट मार्केट. और उनके फ्यूचर्स अकाउंट में प्रॉफिट भी है ऑफ 0.055 सेंट्स का. तो उनको नेट नेट जो पैसे आ रहे हैं वो है 1.02 फ्रॉम द स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में उनको 0.055 भी आ रहे हैं. तो इस केस में इसके लिए इफेक्टिव प्राइस हो जाता है 1.02 प्लस 0.055 विच इज इक्वल टू 1.05 सेंट्स पर येन. अब फोर्थ प्रैक्टिस प्रॉब्लम की बात करते हैं. A company knows it will buy 20,000 barrels of crude oil in the near future. A company is going to buy an asset in the future. Whenever you have to buy an asset in the future, you take the long hedge, which is the long futures position. The contract size for oil futures contracts trading on NYMEX division of CME Group is 1,000 barrels. The company wants to hedge its risk. The futures price on June 8th, when they decide to hedge the risk, is $88 per barrel. तो F1 आप लिख सकते हैं 88. The company decides to buy the oil on November 10th. It closes out its futures position on that date. The spot price and futures price on November 10th are $90 per barrel and $89.10 per barrel. तो आप F1 को लिख सकते हैं 88, हमने बात की. स्पॉट प्राइस ऑन नवंबर 10th इज 90, तो S2 को आप लिख सकते हैं 90 एंड फ्यूचर्स प्राइस ऑन नवंबर 10th इज 89.10, तो F2 को आप लिख सकते हैं 89.10. नाउ वी नो दैट द ऑयल कंपनी हैज टू बाय ऑयल इन द फ्यूचर. इफ दे हैव टू बाय ऑयल इन द फ्यूचर दे विल टेक द लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन. तो लॉन्ग एट F1, तो इस केस में यू विल डू लॉन्ग एट 88. अब फ्यूचर्स पोजीशन क्लोज करने के लिए यू हैव टू टेक द ऑपोजिट पोजीशन एट F2. तो लॉन्ग एट 88 किया आपने, विच इज टू ओपन द पोजीशन. To close the position, you take the opposite position, short at F2. F2 is 89.10, तो long at 88, short at 89.10. तो इस केस में अब प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? लॉन्ग एट 88 का मतलब दे अग्री टू बाय एट 88. शॉर्ट एट 89.10 का आप ऐसे रीड कर सकते हैं प्राइस इन द मार्केट टर्न्ड आउट टू बी 89.10.
तो they agreed to buy at 88. Price in the market is 89.10. That means if anyone else wants to buy, they will buy at 89.10. But the company has a contract to buy it at 88. इसके लिए कंपनी को प्रॉफिट हो गया because they are buying it at a lesser price than anyone else would have bought it at. तो उनको प्रॉफिट हो गया 89.10 minus 88 which is $1.1 per barrel का. तो ये उनके फ्यूचर्स पोजीशन से उनको प्रॉफिट आया. अब स्पॉट मार्केट में तो उनको वो करना ही पड़ेगा जो उन्हें करना था, विच इज़ दे वांटेड टू बाय ऑयल. तो इसके लिए वो लोग स्पॉट मार्केट में जाएंगे एंड दे विल बाय ऑयल एट द प्राइस इन द स्पॉट मार्केट. तो प्राइस इन द स्पॉट मार्केट क्या है? S2 विच इज़ $90 पर बैरल. तो स्पॉट मार्केट में जाके वो लोग ने $90 पर बैरल में बाय कर लिया ऑयल, बट उनको प्रॉफिट भी आया था. तो इस केस में उनको पे कितना पड़ा? नेट उनको कितना पे करना पड़ा? $90 उनको पे करने पड़े, बट $1.1 का प्रॉफिट उनके फ्यूचर्स अकाउंट में आ गया था. तो नेट उनको जो पे करना पड़ा वो है $90 माइनस 1.1, क्योंकि 1.1 ऑलरेडी फ्यूचर्स अकाउंट में आ गया था. तो उन्हें नेट पे करना पड़ा $88.90 पर बैरल विच इज़ द इफेक्टिव प्राइस. अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 पे चलते हैं. प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 से दे गेट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, तो लेट्स ट्राई टू डू इट अ लिटिल स्लोली. Consider a mutual fund manager with a portfolio of 100 crores. Manager has a fear of volatile markets for the next month. The current value of BSE Sensex is 56,500. The February futures are trading at 56,525. It is traded in multiples of 50. How can fund manager be protected against volatile markets, assuming he is holding well-diversified portfolio? After 1 month, the position is squared off in the market, and the market has fallen by 5% and futures have fallen to 54,800. तो अब क्वेश्चन को पहले समझते हैं. एक पोर्टफोलियो मैनेजर के पास 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है. ही इज केयर्ड कि अगले मंथ मार्केट्स वॉलेटाइल होगी तो मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू गिर जाएगा. तो ही इज केयर्ड दैट इफ ही सेल्स द पोर्टफोलियो नेक्स्ट मंथ द प्राइस विल बी टू लेस बिकॉज द मार्केट्स आर वॉलेटाइल. तो वी कैन से दिस कि ही विल सेल इन द फ्यूचर. If he is going to sell in the future, उसका पोर्टफोलियो 100 करोड़ का अभी है. If he sells in the future, he may get a small amount. तो he will sell in the future. That is why he is taking a short futures position. अब short futures position ले रहा है, ये तो clear है. उसके पास 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है and this 100 करोड़ का पोर्टफोलियो is at the time when the current value of BSE Sensex is 56,500. तो जब BSE Sensex 56,500 है तब उसका पोर्टफोलियो 100 करोड़ का है. तो BSE Sensex 56,500 से अगर कम हो जाएगा तो उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी 100 करोड़ से कम हो जाएगी. द फेब्रुअरी फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग एट 56,525 एंड दे आर ट्रेडेड इन मल्टीपल्स ऑफ 50. तो एक यूनिट ऑफ फेब्रुअरी फ्यूचर्स, अगर हम देखें एक यूनिट ऑफ फेब्रुअरी फ्यूचर्स विथ अंडरलाइंग एसेट एज BSE Sensex का प्राइस है 56,525. एक यूनिट ऑफ फेब्रुअरी फ्यूचर्स का BSE Sensex, तो दैट इज 56,525. बट एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में देर इज मल्टीपल्स ऑफ 50. तो एक यूनिट इज 56,525 एंड वन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज मल्टीपल्स ऑफ 50. तो एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होगी? एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी एक यूनिट विच इज 56,525 इंटू 50. तो एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो गई 28,26,250. So you can only take one futures contract. You cannot take one unit, and one futures contract is worth 28,26,250. अब he wants to hedge what? He wants to hedge a portfolio worth 100 crore. तो amount to be hedged क्या हो गया? Amount to be hedged हो गया 100 crore. अब इसके लिए number of futures contracts that will be required to hedge this position वो कितने होंगे? नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, अमाउंट टू बी हेज्ड उसको 100 करोड़ हेज करना है. बट एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से खाली 28,26,250 ही हेज हो सकता है. अगर उसको 100 करोड़ हेज करना है तो उसको कितने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ेंगे? एक कॉन्ट्रैक्ट से हेज होता है 28,26,250. तो द नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी अमाउंट टू बी हेज्ड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो इस केस में जो नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आता है वो होता है 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 28,26,250. तो 353.8 के आसपास आता है. ही वांट्स टू हेज द फुल एक्सपोजर. इसके लिए हम 354 कॉन्ट्रैक्ट्स कंसिडर करते हैं. तो पूरे रिस्क को हेज करने के लिए उसको 354 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे.
एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 50 यूनिट्स ऑफ BSE सेंसेक्स आते हैं, 50 यूनिट्स ऑफ BSE सेंसेक्स, ये भी आपको याद रखना है। नाउ हमने बात की उसके पास 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, ही विल सेल इन द फ्यूचर, तो ही विल टेक द शॉर्ट फ्यूचर्स पोजिशन। तो S1, F1, S2, F2 क्या है? तो हमें लिखा हुआ है कि द करेंट वैल्यू ऑफ BSE सेंसेक्स इज 56,500, तो S1 हम लिख सकते हैं 56,500। आगे लिखा हुआ है फेब्रुअरी फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग एट 56,525, तो हम लिख सकते हैं F1 इक्वल टू 56,525। इट इज ट्रेडेड इन मल्टीपल्स ऑफ 50, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, 1 month the position is squared off, after 1 month the position is squared off in the market and the market has fallen by 5%। अगर मार्केट हैज फॉलन बाय 5%, मतलब BSE सेंसेक्स हैज फॉलन बाय 5%, तो उसका पहले वाला वैल्यू था 56,500, नाउ इट हैज फॉलन बाय 5%, तो 56,500 minus 5% of 56,500 will be the new value of BSE सेंसेक्स। तो न्यू वैल्यू ऑफ BSE सेंसेक्स हो गया 53,675 एंड फ्यूचर्स हैव फॉलन टू 54,800। तो हमें S1 मालूम है, F1 मालूम है, S2 मालूम है, F2 मालूम है, F2 हो जाएगा 54,800। अब हम फ्यूचर्स पोजीशन की बात करते हैं। फ्यूचर्स पोजीशन वो लेने कौन सी वाले है? पहले तो ही विल सेल इन द फ्यूचर, अगर ही विल सेल इन द फ्यूचर तो ही विल टेक द शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन, तो वो क्या करेगा, शॉर्ट एट F1, तो शॉर्ट एट F1 किया तो शॉर्ट एट 56,525। अब उसको फ्यूचर्स पोजीशन क्लोज करनी पड़ेगी, अगर फ्यूचर्स पोजीशन क्लोज करनी है तो ही विल हैव टू टेक द ऑपोजिट पोजीशन, इसके लिए ही विल डू लॉन्ग एट F2, तो शॉर्ट एट F1 मीन्स शॉर्ट एट 56,525 एंड लॉन्ग एट F2 मीन्स लॉन्ग एट 54,800। अब इस केस में प्रॉफिट या लॉस क्या होगा ऑन 1 यूनिट? ही हैज अग्रीड टू सेल 1 यूनिट एट 56,525, the price in the market has gone to 54,800, so he is selling at 56,525. If anyone else wants to sell, they will have to sell it at 54,800, तो इस केस में he is selling at a price which is more than the market price, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? उसका प्रॉफिट होगा 56,525 minus 54,800 which is 1,725 per unit of BSE Sensex, तो 1725 पर यूनिट है। एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में कितने यूनिट है? 50 यूनिट, तो प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर्स पोजीशन क्या होगा? 1725 पर यूनिट इनटू एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में कितने यूनिट होते हैं? 50 यूनिट, और उसके पास ऐसे कितने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है? उसके पास 354 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका टोटल प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर्स पोजीशन जो आता है वो आता है 30,532,500 विच इज 3,05,32,000। ये उसका प्रॉफिट आता है फ्रॉम द फ्यूचर्स पोजीशन, 3,05,32,500 का प्रॉफिट आता है फ्रॉम फ्यूचर्स। अब स्पॉट मार्केट में क्या हुआ? पोर्टफोलियो वैल्यू थी 100 करोड़ जब BSE सेंसेक्स था 56,500। BSE सेंसेक्स बाद में कहाँ हो गया? बाद में चेंज हो गया BSE सेंसेक्स की वैल्यू, वी नो इट फेल बाय 5%। अगर BSE सेंसेक्स फेल बाय 5% तो उसकी पोर्टफोलियो वैल्यू भी हम सीधा बोल सकते हैं फेल बाय 5%, बिकॉज दिस पोर्टफोलियो वैल्यू वॉज 100 करोड़ when BSE Sensex was 56,500. तो when BSE Sensex fell by 5%, his portfolio would have fallen by 5%. ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम लेते हैं पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ 100 करोड़ when BSE Sensex का स्पॉट वैल्यू था 56,500, तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ BSE Sensex दैट ही हैड was 17,700 यूनिट्स। ये 17,700 यूनिट्स कहाँ से आया? 100 करोड़ divided by 1 BSE Sensex which is 56,500. So the number of units that he owned was 17,700 units of BSE Sensex. इसके लिए उसका portfolio value था 100 करोड़। अब BSE Sensex fell. How much did it fall to? In spot market the portfolio value we know. Spot price goes down by 5%. तो spot price गिर गया to 53,675 और उसके पास कितने यूनिट्स थे? 17,700 यूनिट्स। तो उसका जो न्यू पोर्टफोलियो वैल्यू होगा वो होगा 53,675 इंटू 17,700 यूनिट्स दैट ही हैज़, तो उसका जो न्यू पोर्टफोलियो वैल्यू होगा वो ऑलमोस्ट 95 करोड़ के आसपास आएगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पोर्टफोलियो वैल्यू 100 करोड़ से 95 करोड़ क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट फेल बाय 5%। या हम नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमने किया, और उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स multiplied by the value of 1 unit of BSE Sensex. So the new value of 1 unit of BSE Sensex was 53,675. He had 17,700 units
इसके लिए उसका न्यू पोर्टफोलियो वैल्यू हो गया 95 करोड़। अब उसको स्पॉट मार्केट में कितने का लॉस हुआ? उसका पोर्टफोलियो 100 करोड़ से 95 करोड़ चला गया है इन द स्पॉट मार्केट। तो स्पॉट मार्केट में उसका 5 करोड़ का लॉस हो गया है। बट उसका प्रॉफिट इन फ्यूचर्स क्या हुआ है? उसका प्रॉफिट इन फ्यूचर्स हुआ है 3 करोड़ 5,32,500। तो उसका जो नेट लॉस है, उसका नेट लॉस खाली 1.9 करोड़ ही है। क्यों? क्योंकि उसका स्पॉट मार्केट में तो 5 करोड़ का लॉस हो जाता, लेकिन उसने हेज किया था अपना रिस्क, उसका प्रॉफिट हुआ फ्यूचर्स पोजीशन में। बिकॉज उसका प्रॉफिट हुआ फ्यूचर्स पोजीशन में, इसके लिए उसका जो नेट लॉस है वो 5 करोड़ से गिर के 1.9 करोड़ 4,67,500 रुपीज पे आ गया। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 पे चलते हैं। An investor has bought stock of HUL at rupees 200 and has invested 20 lakh in this. Beta of stock is 1.2 and currently index is trading at 2250. Index futures are trading at 2310. How can investor protect himself from falling market? Analyze his position if market falls by 10% and HUL stock falls to 178. The futures are traded in multiples of 200 and the futures are moving in perfect tandem with the market. सबसे पहले हम लोग को बीटा का इंटरप्रिटेशन समझना पड़ेगा। बीटा का इंटरप्रिटेशन देखते हैं। अगर द बीटा ऑफ स्टॉक इज ग्रेटर देन 1, इस केस में बीटा ऑफ द स्टॉक ऑफ HUL इज 1.2, तो व्हेनेवर द बीटा ऑफ स्टॉक इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब होता है कि व्हेन द मार्केट इंक्रीजेस दिस स्टॉक विल इंक्रीज मोर देन द मार्केट, बट व्हेन द मार्केट डिक्रीजेस दिस स्टॉक विल डिक्रीज मोर देन द मार्केट। तो इसके लिए इन्हें अग्रेसिव स्टॉक्स कहते हैं। अब बीटा लेस देन 1 का मतलब समझते हैं। बीटा लेस देन 1 होते हैं डिफेंसिव स्टॉक्स। ये स्टॉक्स क्या होते हैं? व्हेन द मार्केट इंक्रीजेस दे विल इंक्रीज लेस देन द मार्केट, बट व्हेन द मार्केट डिक्रीजेस these stocks will decrease again less than the market. अब इस केस में HUL का स्टॉक अग्रेसिव स्टॉक है। जब मार्केट इंक्रीज होगी तो इट विल इंक्रीज मोर देन द मार्केट, व्हेन द मार्केट विल डिक्रीज इट विल डिक्रीज मोर देन द मार्केट। अब हम समझते हैं कि ये जो इंसान है इसने 20 लाख के 20 लाख पूरे HUL के स्टॉक में डाल दिए हैं। अब उसको डर लग रहा है कल जाके मार्केट गिर गई, मार्केट गिर गई तो HUL का स्टॉक भी गिर जाएगा और उसका जो 20 लाख रुपीस है वो भी गिर जाएगा। अब उसको अपना रिस्क हेज करना है और रिस्क हेज करने के लिए उसको फ्यूचर्स पोजीशन लेनी है। जो फ्यूचर्स पोजीशन ही डिसाइड्स टू टेक इज इन इंडेक्स फ्यूचर्स। उसका एक्सपोजर है इन द HUL स्टॉक, बट द फ्यूचर्स पोजीशन दैट ही इज टेकिंग is in index futures. Up the amount of hedging that he is going to do, the amount that he is going to hedge has to change because the asset that he is trying to hedge is HUL ka stock, but the futures that he is using is index futures. That is why the amount to be hedged has to change. अब मैंने बताया कि अगर मार्केट गिरी तो जो HUL का स्टॉक है will fall more than the market and he is scared that the market will fall. So the amount that he has to hedge should be more than 20 lakh. Why more than 20 lakh? Because if the market falls, HUL ka stock will fall more than the market and he is hedging his exposure using index futures. So because he is hedging using index futures, इसके लिए the amount that he has to hedge should be more than 20 lakh. अब यही देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन HUL 20 लाख है, hedging will be done by index futures. Amount to be hedged in index cannot be 20 lakh, it has to be more than 20 lakh. Why more than 20 lakh? Because he's hedging in index futures while his exposure is in HUL and the beta of HUL is greater than 1. Beta of HUL is greater than 1 का मतलब है कि if the market falls, HUL will fall more than the market. इसके लिए the amount that he has to hedge should be more than 20 lakh, which is his exposure in HUL. अब amount to be hedged होता क्या है? अमाउंट टू बी हेज्ड होता है जो 20 लाख उसका एक्सपोजर है इनटू द बीटा। तो इस केस में बीटा है 1.2, इसके लिए उसको इंडेक्स फ्यूचर्स में 24 लाख हेज करने चाहिए, क्या कि उसका 20 लाख का जो एक्सपोजर HUL में है वो पूरा हेज्ड हो। अब आगे देखते हैं, फ्यूचर्स पोजीशन देखते हैं। फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग एट 2310, ये लिखा हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर्स आर करेंटली ट्रेडिंग एट 2310, तो इसके लिए फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग एट 2310। 1 unit index equal to 2310, ऐसा लिखा हुआ है। 1 unit index equal to 2310 और 1 futures contract is equal to multiples of 200, ये mentioned है। The futures are traded in multiples of 200, तो 1 futures contract equal to multiples of 200। अगर एक यूनिट 2310 है तो एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू होगा 2310 विच इज 1 यूनिट
into multiples of 200. इसके लिए 2310 into 200 which is 4,62,000 rupees. ये है वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. वन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू होगा वन यूनिट इंटू द मल्टीपल विच इज 200. इसके लिए द वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज 4,62,000. तो नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा अमाउंट टू बी हेज्ड, जो इस केस में 24 लाख है. याद रखना, इट्स नॉट 20 लाख, इट्स 24 लाख. एंड द वैल्यू डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो इस केस में द वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज 4,62,000. इसके लिए the number of futures contract required to hedge the full position is equal to 5.19. अब उसको पूरा पोजीशन hedge करना है तो 5 कर देगा तो उसका 0.19 का एक्सपोजर रह जाएगा. इसके लिए 6 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लेगा वो. अब फ्यूचर्स पोजीशन उसने ले ली. हमने बात की है F1 इस केस में है 2310. क्यों है? क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग एट 2310. इसके लिए हम लिख सकते हैं F1 इक्वल टू 2310. F2 इक्वल टू 2310 माइनस 10% ऑफ 2310. ऐसा क्यों लिख रहे हैं? अब आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है द फ्यूचर्स आर मूविंग इन परफेक्ट टैंडम विद द मार्केट. और ऐसा भी लिखा है कि द मार्केट फॉल्स बाय 10%. इफ द मार्केट फॉल्स बाय 10% एंड द फ्यूचर्स आर मूविंग इन परफेक्ट टैंडम विद द मार्केट, इसका मतलब है द फ्यूचर्स विल ऑल्सो फॉल बाय 10%. इसके लिए F2 जो हो जाएगा वो है 2310 माइनस 10% ऑफ 2310. तो इस केस में he has bought the stock, he will sell the stock in the future. If he is going to sell the stock in the future, he will take the short futures position. जब भी short futures position लेते हैं तो हम लिखते हैं short at F1. तो इस केस में भी हम वही करेंगे, short at F1 equal to 2310. अब हमें opposite position लेना पड़ेगा at F2. तो इस केस में हम लिखेंगे long at F2 which is 2079. 2079 कहाँ से आया? 2310 माइनस 10% ऑफ 2310 इज 2079. तो शॉर्ट एट F1, लॉन्ग एट F2. तो अब इसमें प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? इस केस में प्रॉफिट होगा 231 रुपीज़ पर यूनिट. ये कैसे आया? शॉर्ट एट F1 का मतलब होता है ही अग्रीज टू सेल एट F1 विच इज 2310. लॉन्ग एट F2 को आप ऐसे रीड कर सकते हैं द प्राइस टर्न्ड आउट टू बी 2079. तो ही इज सेलिंग एट 2310 while the price is just 2079. मतलब if anyone else wants to sell, they will sell at 2079 and he is selling at 2310. तो he is selling at a price which is more than the market price. इसके लिए उसका प्रॉफिट हुआ 231 रुपीज़ पर यूनिट. अब ये एक यूनिट पे प्रॉफिट है 231 रुपीज़. और एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में कितने यूनिट्स थे? 200 यूनिट्स थे एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में. तो फ्यूचर्स पोजीशन से जो प्रॉफिट आएगा वो है 231 पर यूनिट इंटू 200 यूनिट्स विच इज़ देयर इन वन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. और ऐसे हमारे पास 6 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है. तो इसके लिए प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर्स पोजीशन हो गया 2,77,200 रुपीज़. अब स्पॉट पोजीशन की बात करते हैं. स्पॉट मार्केट में S1 इक्वल टू 200. S1 इक्वल टू 200 ये कैसे लिखा? ही हैज़ बॉट स्टॉक ऑफ HUL एट रुपीज़ 200. इसके लिए हमने लिखा S1 इक्वल टू 200. S2 इक्वल टू 178. ये कैसे लिखा? इसमें क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है एनालाइज दिस पोजीशन ऑफ मार्केट फॉल्स बाय 10% एंड HUL स्टॉक फॉल्स टू 178. इसके लिए S2 इक्वल टू 178. अब पोर्टफोलियो वैल्यू व्हेन ही ओपन द पोजीशन वाज 20 लाख. उसने 20 लाख रुपीज़ पूरे के पूरे HUL के स्टॉक में डाल दिए. इसके लिए जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो है 20 लाख. और नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ HUL उसने कितने खरीदे? अगर उसने 20 लाख रुपीज़ HUL में इन्वेस्ट किए हैं, जब प्राइस ऑफ वन शेयर वॉज 200, तो द नंबर ऑफ शेयर्स दैट ही बॉट वुड बी 20 लाख डिवाइडेड बाई 200 विच इज़ 10,000 शेयर्स. उसने 10,000 शेयर्स ऑफ HUL बाय किए होंगे एट द प्राइस ऑफ 200. इसके लिए उसका पोर्टफोलियो वैल्यू वॉज 20 लाख. अब शेयर्स वर सोल्ड एट 178 पर शेयर. S2 में जाके वो 178 पर शेयर में सेल कर देगा अपने शेयर्स. अगर वो 178 पे सेल करेगा तो द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही रिसीव्स विल बी 178 इनटू द 10,000 शेयर्स विच इज़ 17,80,000 रुपीज़. तो उसका लॉस हो गया क्योंकि उसका 20 लाख का जो पोर्टफोलियो वैल्यू था वो अब सिर्फ 17,80,000 रुपीज़ उसको फेच कर रहा है. तो उसका जो लॉस हुआ इन स्पॉट मार्केट वो है 20 लाख माइनस 17,80,000 विच इज़ 2,20,000. ये उसका लॉस था इन स्पॉट मार्केट. बट ये आपको भूलना नहीं है कि फ्यूचर्स में उसको प्रॉफिट हुआ था. उसने शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन लिया था जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट हुआ था ऑफ 2,77,200 रुपीज़. तो नेट नेट उसका जो प्रॉफिट आया वो था 2,77,200 जो उसको प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर्स आया था माइनस 2,20,000 विच इज़ लॉस फ्रॉम स्पॉट.
तो इवन दो स्पॉट मार्केट में लॉस हो गया, उसके फ्यूचर्स पोजीशन ने उसको कवर कर लिया एंड नेट नेट उसका अभी भी 57,200 रुपीज़ का प्रॉफिट ही आ रहा है।